Hello, everybody. Welcome back to another episode. I'm back today with Kavita. So, Kavita is founder of Nimbu Pani Advertising and the founder of Swadeshi Khareed, and an MBA graduate. So, thank you very much, Kavita, for being here. It's my pleasure to have you. Thank you very much. Hello everyone. Hi. Yeah. So, before beginning, Kavita, it would be great if you could introduce yourself about your work and achievements. Yeah, please go ahead. Right. See, originally I'm from Jaipur, not exactly from Jaipur, a small town from Jaipur, and I have done my MBA from Bangalore. Then in 2012, I have started an ad agency called Nibu Pani Advertisers. So since 9 years, I am just handling almost all Indian and international brands of India. I'm looking after their branding part and like ATL, BTL part. Then in 2020, I thought to start some new venture. So the Swadeshi Khareed is my new startup, which I have started on 15th August of 2020. So this Swadeshi Khareed is a platform which is like only for Indian sellers, and we are selling on this. It's a multi-vendor platform, and here we are selling made in India items only. Like कई बार होता है कि when the COVID was there, so हम लोग सब जने स्वदेशी को भी वो promoting. Even I went through कि चलो मैं भी कुछ स्वदेशी खरीदती हूँ, but not a, it was not a, there was not a single website where we could find like any kind of Hmm. made in India item at one place. Yeah, yeah. So the when Swadeshi came in my mind, so I said, अच्छा ये many people correlate कि शायद कोविड चालू हुआ तो एवरीवन स्टार्टेड जंपिंग ऑन ई-कॉमर्स थिंग्स एंड ऑल, तो शायद मैंने भी वैसा शुरू करा, बट इट वाज नेवर अ स्टोरी लाइक दैट. ये दिस प्लान वाज इन 2015, सिंस आई वाज हैविंग दिस इन माय माइंड कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हमारे जो इंडिया के रूरल एरिया के स्पेशली जो सेलर्स है, जो बहुत ही अच्छे से हैंडीक्राफ्ट एंड आयुर्वेदा एंड लॉट ऑफ वेरी प्योर एंड इंडियन ऑथेंटिक थिंग्स आर देयर, तो उन सबको कैसे ऑनलाइन लाया जाए. सो दैट कॉन्सेप्ट वाज ऑलरेडी देयर इन माय माइंड सिंस 2015, but I implemented this at time of this COVID. The reason behind, I got enough time to think about and do a research and make a proper planning and implement this and start this business. So this is what the story all about me and my Swadeshi Khareed. And because I myself belongs from a very small town, you can say village, so I have a very good interior rural area knowledge also. Like Hmm. Yeah. so that really had given me a good advantage in my business. Either it's a नींबू पानी advertiser और इसे स्वदेशी खरीद, दोनों में मुझे अच्छा मेरा जो रूरल बैकग्राउंड है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया उसने मुझे. ठीक है. Okay, great, great, Kavita. Thank you very much for sharing that with us. ये सिर्फ मेरे को ये आप that it's wonderful and it's exceptionally it's really makes me really happy that women like you come out and do wonderful things. It's really inspiring. Keep that doing. First of all, congratulations and thank you for doing such a wonderful job. And now moving forward towards the conversation, मेरे को how like why did this do you like as you said you're an MBA graduate, like till where did your MBA helped you to successfully manage your Nimbu Pani advertisers and your company Swadeshi Khareed? Do you think the degree, the MBA you have helped you? A lot, because the degree practically you can, if I say, you will not get any kind of advantage in your professional things and all. After your experience and when you do a projects and all, you meet lot of cases and like troubles and all. Then troubleshoot you do. So then only you become a perfect business person, or particular department or particular industry. But yes, degree gives you a very confidence level. I mean, the degree gives you a good confidence. Like once you have a degree, so you automatically बोलते हैं एक अच्छा सा confidence आता है कि I'm an MBA. So that gives you really a good advantage and a confidence level, so that you can take any kind of challenge. So of course I say yes, degree is very important, and of course yes. Okay, okay, okay. And what how why did you start your first company?
and since 9 years, you say it's 9 years, and maybe you want to very soon it's going to be a decade you run a company. Meanwhile, कि आपने इसमें इतने साल से कविता आपने क्या सीखा, like what did you learn in a personal level, and how did you personally change? आपके इसमें क्या, how what differences Yeah, did you see in yourself? right. So, सबसे पहला क्वेश्चन कि why I have started this venture and the business. See, जो होते हैं ना, if I talk about any entrepreneur who have been to your show are listening and seeing the things, ये बोलते हैं ना, एक बचपन से ही ना एक जिद रहती है, एक पैशन रहता है उनके अंदर कि कुछ डिफरेंट करना है. So that I admit, they think many will also admit this, कि एक जॉब करने वाला, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग बेस्ट देयर पार्ट, बट उनके और हम में सिर्फ डिफरेंस इतना रहता है कि वी डोंट वांट टू डू कि किसी का नौकर बन के काम नहीं करना है, खुद का कुछ करना है. हमें अपने प्रोजेक्ट्स पे लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, पैशन लेवल बहुत डिफरेंट रहता है, और एक हार्ड वर्किंग जिसे बोलते हैं, जहाँ बहुत लोग डर जाते हैं. हम लोग दिन रात, आई रिमेम्बर जब मैंने नींबू पानी चालू किया था, तो बहुत से लोगों को नाम से प्रॉब्लम था कि ये क्या नाम रखा है, नींबू पानी, ये सब वेरी फनी नेम एंड ऑल. लाइक मेनी को फाउंडर हैड लाइक स्टेप पे मेरे साथ आए और अचानक सब चले गए, एंड आई वाज अलोन हैंडलिंग द एंटायर कंपनी फॉर 6 months. और ऐसा भी टाइम था जब मैं रात को कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, और उसका जो पैसा मिल रहा था वो मैं अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही थी. लाइक so everyone will go through this kind of एक सिस्टम वो अपना बनाते, जस्ट टू कोई फंड होता नहीं है, तो हम लोग खुद ही बूट फंडिंग करते हैं, खुद से अपना फंडिंग डालते हैं, अपना सेविंग्स डालते हैं, तो वो ऐसे ही आता है. तो वो जो भी हम करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है कि वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग इन आवर माइंड एंड वी थिंक कि दिस इज द बेस्ट वी कैन डू इट एंड वी शुड डू इट. तो वो एक जुनूनीपन होता है ना, वो ही आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है. और मेरे ख्याल से मेरे अंदर भी वही था बचपन से ही. माय मदर इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल नाउ, तो उसने मुझे बचपन से, उन्होंने मुझे एक तरह का मेरे अंदर मुझे गाइड भी करा था कि बी डिफरेंट, लाइक ट्राई टू डू समथिंग. अच्छे से करोगे तो यू विल 100% गेट सक्सेस. लाइक ऐसा नहीं है. तो वो सब करके मुझे लगा कि मुझे खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए, और मैंने ये एड एजेंसी चालू करी, क्योंकि मैं शुरू से ही क्रिएटिव लाइन में ही थी और मुझे कुछ डिफरेंट ही करना था. तो अभी देखो, ऑलमोस्ट ऑल बिग ब्रांड लाइक यूनिबिक कुकीज ले लो, एफडीसी इंडिया ले लो, अपना इमामी ले लो, अपना Amrutanjan, currently I'm doing branding for their products, like almost all big brands I'm handling on Pan India level. So ये सब इसलिए हुआ कि मैंने जब शुरू करा था तब कोई भी नहीं था मेरे साथ. like I had started from zero, और उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल भी किया. बट अब ऐसा है कि अब पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डेडिकेशन लगा ही रहा. And same thing is happening with Swadeshi also. Although I have a 9-year experience of entrepreneurship and business बिजनेस रहा है, बहुत सारे फेथ है लोगों का मेरे ऊपर, स्टिल सेम काइंड ऑफ स्ट्रगल आई एम फेसिंग इन स्वदेशी खरीद. लाइक तो जब भी आप, चाहे आप कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हो या कितना भी पहले से काम कर रहे हो, आप नया प्रोजेक्ट जब चालू करते हो तो आपको फिर से वही स्क्रैच पे शुरू करना पड़ता है, और फिर से वही स्ट्रगल रहता है. इट्स जस्ट लाइक गिविंग बर्थ टू अ बेबी. ऐसे सब नहीं बोलते कि बिजनेस चलाना है लाइक बच्चा पालना है. नॉट दिस वेरी, इवन आई felt the same thing. Like I experienced the same thing. Okay. और as you said कि स्टार्टिंग डेज में इतना ये भी था कि मेरे को खुद में कॉल सेंटर में काम करके अपना एम्प्लॉयज का सैलरी देना पड़ा, कि and now when you see yourself कि you are really strong enough and you can pay your employees salary without any kind of problems and difficulties and which you faced, what does it what does it make you feel when you remember those days कि इतना भी स्ट्रगल किया था? कॉन्फिडेंस देता है मुझे, बहुत कॉन्फिडेंस देता है. मुझे याद है जब मैं नई बॉम्बे आई थी तो मुझे जुहू नहीं पता था, तो मैंने मीरा रोड पर रहती थी, तो मीरा रोड से चर्च गेट 2 चक्कर लगा लिए कि जुहू तो आया ही नहीं. और चूंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते तो बॉम्बे लाइक घर वाले कह के भेजते कि किसी से कुछ बात नहीं करना, पूछना मत एंड ऑल. तो हम सोच रहे थे इतना चक्कर लगा रहे, जुहू क्यों नहीं आ रहा है, लाइक सो दैट काइंड ऑफ लाइक स्टुपिडिटी मेरे पास थी. और स्टेशन रेलवे
ट्रेन से ट्रैवल करते थे और आज मैं वही खुद की कार से घूमती हूँ, लाइक यू नो मेरा खुद का फ्लैट भी है बॉम्बे में। एक टाइम तक बैचलर के लिए फ्लैट नहीं मिल रहा है, ऐसे ऐसे टाइम देखे हमने कि लाइक यू नो बहुत स्ट्रगल किया, और सभी करते हैं, मतलब ये मेरे लिए कुछ नया नहीं कि मैं स्पेशल कर रही हूँ, बट वो स्ट्रगल एवरीवन हैज गॉन थ्रू, लाइक मस्ट हैव गॉन थ्रू, और मेरा भी वैसा ही कुछ हुआ। तो अब मुझे लगता है जब मैं गाड़ी से जाती हूँ तो मैं कभी कभी ट्रेन से ट्रेवल करती हूँ, जस्ट टू रिमेम्बर कि अच्छा मेरा ऐसा भी दिन था। और मैं अभी भी लाइक यू नो वन रूम किचन में मैं रहती थी और अजीब सी जगह पे रहती थी, और आज मैं लेविश फ्लैट आई कैन मेंटेन, लाइक यू नो। तो वो सब दिन में अभी भी मतलब याद करती हूँ तो लगता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल तो आता है कि यस आई हैव अचीव समथिंग। Mhm, mhm. और राइट नाउ विद स्वदेशी खरीद, आई थिंक इट्स नॉट इवन अ ईयर व्हेन यू स्टार्टेड इट। आपने इसको मतलब आई थिंक इट्स बीन अ वेरी, आई थिंक कितना अराउंड, Very या young baby. 15th of August we have started, yeah, yes. so 15th of August, yeah, it's not been a lot of months, it's been very less time that you're into out. How has been the response, like कैसा response मिला है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों को कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लग रहा है और लोगों को शायद एक चेंज का जरूरत था। मतलब आप देखोगे आज की डेट में मेरे पास 400 वेंडर्स हैं, और आप साइट जाके देखो और साइट पे ऐसा ही शायद कोई प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक Indian products are very less in electronic products and all, but still almost सारे products हमारे पास अवेलेबल हैं। सारे 200 प्लस कैटेगरीज के साथ हम लोग उतरे हैं मार्केट में। इतने कम टाइम में लोगों को 2 कैटेगरी डेवलप करने में या वेबसाइट मेंटेन करने में टाइम लग जाता है, और हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, चाहे मैं ऐड दूं या ना दूं। मेरे पास रोज के 4 से 5 ऑन एन एवरेज ऑर्डर आ रहे हैं, और अगर मेरा ऐड चालू रहता है तो जैसे फेसबुक या डिजिटल मीडिया पे जब हम ऐड देते हैं, अभी तक हम क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम डिजिटल मीडिया पे ऐड दे पा रहे हैं, तब भी हमें आराम से 25-30 ऑर्डर मिल जाते हैं। मतलब यू नो जैसे स्टार्टअप, तो ये बहुत बड़ा यू नो एक मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज करता है, एक मोटिवेशन हमें देता है। तो स्वदेशी खरीद पीपल आर लाइकिंग अ लॉट। और एक तो हमारा एक प्रोडक्ट है डेंटा केयर करके, उसका तो कुछ भी ना करो, रोज के 4-5 ऑर्डर वो अलग से, उसको हम स्वदेशी में काउंट ही नहीं करते। आई डोंट इवन आई हैव ऑर्डर्ड द प्रोडक्ट, उसमें ऐसा क्या है, that is a toothpick that is which is like you know extraordinary and very good, like so of course many products of Swadeshi even myself I'm using, like you know, so it's not like कि because वो मेरा साइट है तो मैं बना रही हूँ, मुझे एक्चुअली में पसंद है। और सारे प्रोडक्ट इतने खूबसूरत और इतने अच्छे, अचार देखो हमारा बहुत टेस्टी, तो the quality my sellers are giving, so of course people are buying it, so of course I'm very happy to start these things and all. Even buyers wanted some change, seller wanted some changes, so the results are good. Okay, and what are the difficulties you think are coming up, and how you're trying to solve them? डिफिकल्टीज वही है कि हम अभी तक अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू रीच टू मैक्सिमम बायर्स। लोग जिनके पास हम जा रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतना फंड नहीं है कि हम एटीएल पे जाएं। ऑल्दो नाउ वी हैव स्टार्टेड यू नो अप्रोचिंग टू फंडर्स, वो बल्कि अभी तक शुरू भी नहीं करा है। नाउ वी विल, दैट इज द राइट थिंग, लाइक यू नो फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड वी विल गो टू अप्रोच द फंडर्स एंड ऑल, क्योंकि उससे पहले आई वांटेड टू सी कि प्रोडक्ट कैसा रहे, यू नो किसी और का पैसा डाल के एंड फिर परेशान करके, यू नो आई एम इन बिजनेस, तो आई नो कि पहले मैं चला लूं, मेरे पास उतना था फंड, तो मुझे लगा कि अच्छा चल रहा है, अभी चल गया, तो आई हैव अ फैक्ट एंड फिगर टू शोकेस टू फंडर्स एंड ऑल, तो उनके लिए भी इजी रहेगा टू गिव अ जजमेंट। और एक बार मेरे को फंड मिल जाएगा तो हम लोग फिर एटीएल के पास है, एटीएल पे जाएंगे, लाइक टीवी एड और ये सब रेडियो वगैरह पे, तो हमारा अप्रोच फिर अच्छा हो जाएगा। तो अभी जो मेन चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं कि अप्रोच स्पीड बहुत कम है, बिकॉज हमारा जो मीडिया हमने लिया है बिकॉज ऑफ द बजट, हम लोग का स्पीड बाकी और कंपनीज के बराबर नहीं है। सो द डे वी विल रीच टू इंटायर पीपल, ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल बी फार बेटर। Yeah. And what again just how do you keep keep yourself updated? How do you think कि आप कैसे अपने आप को सीखा, मतलब सीखते हैं, कैसे बदलते हैं? How do you evolve, like I mean, if you understand कि आप how do you try to evolve yourself every day? Because as the market is, I think it's really hard, आपको पता नहीं कब क्या आ जाए और किसका बिजनेस कब क्या हो जाए, you never know. But so how do you think and how do you try to evolve
दैट पीपल के अगर कुछ भी आ जाए, कितना भी बड़ा कंपनी आ जाए, अच्छा वाला कंपनी आ जाए, पर लोग स्वदेशी खरीद को छोड़ेंगे नहीं और आपके पास आपके साथ जुड़े रहेंगे. हाउ डू यू थिंक यू आर गोना कीप योर कस्टमर्स विथ यस योरसेल्फ? यस, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो बेस है ना स्वदेशी का, बोलते हैं नाम में ही अपने आप में जादू है. स्वदेशी वो एक इतना लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है. सो नोबडी विल लीव दिस एनी टाइम. और हेलो, राइट, सो नोबडी विल लीव दिस एनी टाइम. एंड लाइक एनर्जी की बात मैं करूँ तो कोई भी इंटरप्रेन्योर जो रहता है, जो जिसका जैसे बोलते हैं ना, एक माँ सुबह उठती है अपने बच्चे को कैसे रेडी करती है, उसको कितना भी कुछ हो रहा हो, लेकिन शी विल बी लाइक विल बी सुपर वुमन फॉर देयर किड्स एंड ऑल. द Yeah. सेम वे बिल्कुल ऐसे हम लोगों के साथ भी होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम एक नई एनर्जी के साथ, चाहे रात को कितना भी लाइफ में अप एंड डाउन रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, सुबह फिर से नया स्टार्ट एंड नया नया आज ये करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, एनर्जी देना है. स्टार्टअप पे कई लोग जुड़ते हैं, फिर देखते हैं पैसा कम है या हमें कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा तो छोड़ के चले जाते हैं. पर इट्स ओके जी. ये जो मैं जो कर रही हूँ या जो मैं फेस करती हूँ, मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज बहुत बड़े लेवल पे, उनका भी कभी स्टार्टअप होगा तो उन्होंने भी वही फेस किया होगा. तो दिस इज द प्रोसेस एवरीवन हैज टू गो थ्रू. तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता. आई से थैंक यू सो मच. एटलीस्ट आपने इतना तो मेरा साथ दिया. मतलब चाहे आप मुझे 2 कदम भी चढ़े हो, उतना तो आपने मुझे साथ दिया. सो इट्स रियली गुड फॉर देम कि दे हैव बीन विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम और स्मॉल टाइम और वॉट एवर दे हैव इन्वेस्टेड इन माई कंपनी. बट मेरा ये भरोसा है कि द प्रोडक्ट what I have made it, that is with the proper research, with मेरा इतना एक्सपीरियंस जो गांव शहर जो भी मैंने अभी तक लिया है किया है, वो सारा एक्सपीरियंस उसमें डाल के I tried to give a best to the people and I'm sure they will like it and they are liking it. The result of getting a buyers in such a small time और daily का I have a facts in front of me like so daily इतना ऑर्डर आना, इतने सेलर्स मिलना और इतना सब कुछ होना. एक टाइम था लोग बोल रहे थे सीओडी करो, आपने हमें प्रोडक्ट नहीं भेजा तो चोर कंपनी निकली, तो पता नहीं कुछ भी उन्होंने एलिगेशन लगाया. हमने उनका कुछ भी मतलब वी पोलाइटली एक्सेप्टेड दैट कि वी अग्री, पर हम सीओडी हमने 3 महीने तक सीओडी ही नहीं रखा था. फिर भी हमारे पास ऑर्डर थे, लोगों ने भरोसा किया. क्योंकि सीओडी करने के लिए हमें और भी कई चीजें फॉलो करनी थी. फाइनेंसेस मैच करने थे, कितना शिपिंग एक्सपेंस हो रहा है तो उसको कम करना था. लॉट ऑफ चैलेंजेस वर देयर. तो हमने 3 मंथ तक नहीं दिया, फिर भी लोगों ने खरीदा और भरोसा दिखाया और आउट ऑफ द वे आके रिव्यूज दिए हमें, चाहे सही दिए या बुरे दिए, तो सारे रिव्यूज आर देयर. मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के रिव्यूज देखती हूँ, सब गाली दे रहे हैं, हमें कोई गाली नहीं दे रहा है, हमें किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला. पीपल आर सपोर्टिंग अस, दे आर विद अस. और उन्होंने मतलब हर तरीके से, अभी हमने सीओडी भी चालू कर दिया है, लेकिन पहले भी उन्होंने इतना डाउट नहीं किया था. मतलब आपको थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, हम लोग कोई इतना, क्योंकि हमें ज्यादा लोग जानते नहीं है तो लाइक मतलब इट्स ऑब्वियस टू हैव अ डाउट काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल. बट पीपल आर रियली सपोर्टिंग अस, तो हमें अच्छा सा मोटिवेशन मिल रहा है उससे. Okay, great. Really happy to hear, Kavita. And how challenging is it, or how easy is it to manage two different companies? Of course, one is a baby and one is a bigger one. So I think bigger one you have a lot of good experiences with and bad experience, and it's a really strong baby now. But the chota wala babies is still getting older and has to be more stronger. So how does it become, how hard does it become to manage this bigger baby and the smaller baby? So you yourself have given answer for this. The first baby is already strong. So बल्कि he the नींबू पानी supporting स्वदेशी to अभी फंड कहाँ से आ रहा है? नींबू पानी only funding ना स्वदेशी को. तो अभी मुझे तो बल्कि नींबू पानी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मुझे टचवुड अभी तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ी. आई एम लाइक ऑन टाइम पेइंग सैलरी टू माय स्टाफ. स्वदेशी का, नींबू पानी का, सब सारा पैसा निकल रहा है. मैं खुद भी अच्छे से रह रही हूँ. लाइक अभी तक किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. सो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि एक स्ट्रॉन्ग बोलते ना, एक पिलर अच्छा खड़ा कर दिया है, वो सपोर्ट कर रहा है दूसरे को. तो 100% मुझे बल्कि बहुत इजी लग रहा है मैनेज करना, क्योंकि नींबू पानी नहीं होता तो बहुत डिफिकल्टीज होती. सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है बहुत से स्टार्टअप्स को रहता है, एंड आई ऑल्सो अग्री कि उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है पैसा कहाँ से आएगा, और फिर पैसे के बाद लिंक कहाँ से आएंगे. आज मेरे खुद के क्लाइंट्स उसमें रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट है, दे नो माई बेस, दे नो एवरीथिंग. तो आराम से उन्होंने बोला इसमें प्रोडक्ट डालो. दे आर प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट.
एंड अ पार्ट ऑफ दैट वहां से मुझे फंड भी मिल रहा है. तो नींबू पानी इज लाइक बोल सकते हैं फंडर ऑफ स्वदेशी. तो इट्स लाइक बोथ आर डूइंग वेल. तो बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं हो रही है, बल्कि अब अच्छा लग रहा है कि एक रूटीन चीज से थोड़ा हटके कुछ और कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और फ्रेशनेस आ रही है. हाँ, 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 ठीक है. और what would be your advice to young ladies who wants to do something different, हटके? वो लड़कियां जो हटके करना चाहती हैं पर इसमें फंस जाती है कि तुम लड़की हो, तुम कर नहीं पाओगी. तुम उसको क्या कहना चाहोगी? आप उनको क्या कहना चाहोगी? ये तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है लड़कियों को. ये नहीं बोलूंगी कि मेल्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है और लड़कियां होने पर हमें बहुत नुकसान होता है, ऐसा नहीं है. लेकिन मेल्स को भी सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो फीमेल्स करती हैं. बट फीमेल्स का थोड़ा ऐसा है कि उनको फैमिली फाउंडेशन भी हो जाती है, उनको पर्सनल रिलेशन का फाउंडेशन हो जाता है. आज अगर 40 साल का लड़का और उसने शादी नहीं की है और वो इंटरप्रेन्योर है, तो उससे कोई नहीं पूछेगा कि भैया आप शादी क्यों नहीं करे हो. और लड़की अगर 40 ईयर की होगी, शादी नहीं करा, तो लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, और फिर उसकी शादी भी नहीं होगी क्योंकि उसको बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे, उसको और भी कई चीजों का इशू हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं लड़कों से ज्यादा सेक्रीफाइस फीमेल्स को करना पड़ता है पर्सनल लेवल पे, नॉट प्रोफेशनल लेवल. प्रोफेशनल चैलेंजेस तो उसके और हमारे सेम ही रहेंगे, बट पर्सनल लेवल पे यस हम लोगों के ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं. एक लड़का जब बिजनेस करता है तो उसको फैमिली फंड कर देती है, रिश्तेदार फंड कर देते हैं. मतलब इट्स मेंट टू बी कि लड़का है तो बिजनेस ही करेगा, लड़की है तो घर संभालेगी, राइट? तो ऐसा लड़कियों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है उसकी शादी के लिए, जबकि लड़कों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है उसके बिजनेस के लिए. तो उनको तो बचपन से ही मोटिवेट किया जाता है. हम लोगों को अलग से करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं. और टचवुड आई एम लकी इन दैट केस कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली माय फादर. आप देखेंगे मतलब एवरी टाइम माय फादर इज मोर लाइक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनको स्वदेशी का. हर रोज जाके सारे प्रोडक्ट वो स्वदेशी से खरीदते हैं, यूज करते हैं, कमेंट्स डालते हैं, लाइक करते हैं. स्वदेशी की वजह से ही केम ऑन फेसबुक. तो माय पेरेंट्स आर एजुकेटेड पेरेंट्स है, इसलिए शायद बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए. एंड आई वाज नेवर गेट ए काइंड ऑफ प्रेशर कि तुझे शादी करनी है, ये करना है. तो आई एम लकी इन दैट. बट द फीमेल्स आई वुड लाइक टू से जिनके साथ ऐसा नहीं भी है, ये नहीं बोलूंगी चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट यू हैव टू चूज वन, आइदर योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि लड़के लोग आज भी अपने से ऊपर लड़कियां या कॉन्फिडेंट लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होंगे, बहुत सारे आपको पर्सनली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट स्टिल आपको पर्सनली बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस. एंड प्रोफेशनली भी प्रोफेशनल चैलेंजेस तो एक साथ आपको 2 चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. बट the place once you reach on height, if you see the world, it looks so beautiful कि आपको जो बोलते हैं ना पहाड़ पे चढ़ के जो आए ना, वो सारे स्ट्रगल आप भूल जाते हैं, क्योंकि वहां से जो दुनिया इतनी सुंदर दिखती है, आपको एक वैल्यू पता लगती है कि आपकी इस जिंदगी हुई क्यों है, या व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू हैव इट. इंडिपेंडेंसी, द फ्रीडम, the life, the reputation, the respect what you deserve, you will get at the time of you reach on height. But अगर आप हाइट पे नहीं भी पहुंचते, आप ट्राई भी करते, वो भी अपने आप में एक अपने आप में एक अच्छा चीज है, अच्छा वर्ड टाइप चीज है. लाइक तो यू शुड ट्राई, यू शुड गो अहेड. मत देखोगे आपको पर्सनली सेक्रीफाइस होगा, बी रेडी फॉर दैट. प्रोफेशनली भी शायद आपको झटके लगेंगे, पर उसके लिए भी तैयार हो. अगर इतना कॉन्फिडेंस आपके पास है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल रीच ऑन हाइट 100%. ठीक है. और फिर जो प्रोडक्ट, ऑफकोर्स आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट मत लो, रिसर्च बहुत जरूरी रहता है, जो बहुत ही कॉमन हो कि मैं तो कोई फूल का गजरा बनाऊंगी और हीरो बन जाऊंगी, तो शायद उसमें डिफिकल्टीज आए. मैं ये नहीं कह रही कि फूल का गजरा कैन नॉट बी like after selling the फूल का गजरा you cannot be a millionaire. Of course चाय वाला also become a billionaire, like lot of tea spots are there, so nothing is impossible, but research required. Okay, so whatever you are doing, trust on that and go ahead. क्योंकि मैं अगर गांव से निकल के सरकारी स्कूल में पढ़ के still you are seeing my English, so much fumblings are there and still I cannot speak a proper English, and I proudly say कि whatever I have learned from you people only, इधर उधर से सुनकर. हम लोग हिंदी फर्स्ट, माय फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, एंड सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोग एमबीए तक पहुंचे, तो इट इज कम्प्लीटली ओके, देयर इज नो शेम इन दैट. मैंने देखा है जब हम प्रेजेंटेशन देते थे और मुझे कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता था इंग्लिश बोलने में, तो द पीपल आर सो सपोर्टिव एंड सो गुड कि दे कम ऑन माय लेवल कि इट्स ओके कविता, स्पीक व्हाटएवर द वे यू वांट टू स्पीक,
द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, लैंग्वेज डजंट मैटर। Matter. तो जो लोगों को ये परेशानी है कि हम तो सरकारी में पढ़े हैं या हम छोटी जगह से हैं या हम ये हैं, प्लीज ये सब कोई मायने नहीं रखता। मुझे भी पहले हेजिटेशन थी कि मैं कैसे करूंगी, अभी मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं तो एंटरप्रेन्योर भी प्रॉपर नहीं बोल पाती हूँ, बट आई एम रनिंग ए 2 सक्सेसफुल कंपनी, सो दे हार्डली मैटर। Yeah, The yeah, yeah. language, the position, the situation, the family, the country, the city, everything doesn't matter if you have a good confidence. Yeah, really, really true, Kavita, and it's really commendable. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं आज इस वक्त. And we are really happy to. I'm personally really happy to have you and have a conversation with you. Thank you very much, Kavita, to come here.